Hello everybody, myself Kalandri Nikita. You are watching Lawputra YouTube channel. So today we will discuss the most important and the basic base of IPC, that is stages of crime. Before we move forward into this topic, it is important to know that what is crime. Crime क्या है? So crime को हम कुछ इस तरीके से समझेंगे. Any act which is prohibited by law and done by someone intentionally is called crime. इसका मतलब ये होता है ऐसा कोई एक्ट जो लॉ प्रोहिबिट करता है और सामने वाला पर्सन वो एक्ट को करता है तो उसको हम क्राइम बोलेंगे. वाइल देर इज़ नो परफेक्ट एंड द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ crime which is defined under Indian Penal Code. So let's move forward to our concept, that is stages of crime. Under stages of crime we have total 4 stages. First is intention, second is preparation, third is attempt and the fourth is the accomplishment. स्टेजेस ऑफ क्राइम पे जाने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हर एक चीज़ की एक प्रोसेस क्या होती है, एक स्टेजेस क्या है. सो स्टेजेस को समझने के लिए अपन एक फॉर्मल एग्जांपल लेंगे एंड एक इनफॉर्मल एग्जांपल लेंगे. इन इनफॉर्मल एग्जांपल, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ कॉफ़ी. यू वांट टू मेक वन कॉफ़ी, सो फर्स्ट व्हाट यू विल डू, you will take one utensil, then you will pour some milk into the utensils, then you will add some sugar and then you will add some coffee as per your taste. So the sequence is, first you will take utensil, then milk, then sugar, then coffee, right? अगर तुम पहले शुगर डाल दोगे, फिर मिल्क डालोगे, फिर तुम कॉफ़ी डालोगे, so it will not work out. बनेगा but it will not work out. Okay, this is the formal example. Second example, this is informal example and let's take formal example. Person A want to commit a theft into his friend's house. So first what he will do, he will make one plan. He will make sufficient arrangement of the knife or etc, right? अगर उसको थेफ्ट कमिट करनी है तो पहले ही विल टेक वन मास्क ताकि उसको कोई देख ना ले. वो कहीं ना कहीं से एक नाइफ अरेंज करेगा, कौन से डायरेक्शन से जाना है, कौन से टाइम पे जाना है. सो ही विल मेक सम रफ प्लान. ओके, डायरेक्टली वो हाउस के अंदर एंटर होगा एंड थेफ्ट कमिट करेगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? इट विल नॉट वर्क आउट. So through this both example, that is formal and the informal, we can understood that for every process that is legal or illegal, that is for every act, whether the act is legal or illegal, there is a process, or we can say there is a stage in order to get the respective result. Okay, so this is the basic scenario of these stages. Now let's move forward. As I mentioned earlier, there are total 4 stages. So let's take intention first. The very first stage in the commission of a crime is an intention. Under intention we have one maxim, that is actus reus non facit nisi mens rea. ये it is a Latin word, it is a Latin maxim. इसका मतलब ये होता है no crime without an guilty mind. वो क्राइम जब तक क्राइम नहीं है अगर उसके पीछे बैड इंटेंशन नहीं है. वो क्राइम जब तक क्राइम नहीं है अगर उसके पीछे बैड इंटेंशन नहीं है. एज आई मैंशनड अर्लियर इन माई प्रीवियस वीडियोज, देर आर टोटल 2 इंटेंशन. फर्स्ट इज गुड इंटेंशन एंड द सेकेंड इज बैड इंटेंशन. इफ देर इज अ गुड इंटेंशन देन इट इज़ नॉट पनिशेबल बाय लॉ. इफ इट इज़ अ बैड इंटेंशन देन इट इज़ अ पनिशेबल बाय लॉ. ओके, सो इंटेंशन क्या होता है, इंटेंशन को अपन कैसे डिफाइन करेंगे. अभी समझो पर्सन ए है, पर्सन बी क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, कैसे वो वर्कआउट करेगा, कैसे नहीं करेगा, वो पर्सन ए को नहीं पता चलेगा. क्यों? बिकॉज पर्सन बी खुद अपने बिकॉज ही इज़ थिंकिंग इंटरनली, राइट? तो पर्सन ए को नहीं पता चलेगा. सो फॉर जनरल मीनिंग वी कैन से दैट इंटेंशन इज एन ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू गेट द अल्टीमेट रिजल्ट. ओके, the very ironical fact about this stage is intention is not punishable under Indian Penal Code. Yes, intention is not punishable under Indian Penal Code. However, there are some exemption. सब ये तो लाइक बहुत ही बेसिक थिंग है, कोई भी चीज़ होगी तो उसका एग्जेम्पशन प्रॉबेबली रहता ही है. सो अंडर दिस स्टेज ओनली वी हैव एक्सेप्शंस. इंटेंशन पनिशेबल नहीं है इंडियन पिनल कोड के अंदर, but there are certain circumstances, there are certain offenses in which even person have an intention is punishable under Indian Penal Code. अभी कौन से offenses है जिसको सोचना या फिर प्रिपेयर करना वो भी एक offense है. So we have very few
offenses, that is waging war against the government, sedition, dacoity. These are the some example of the intention which is often punishable even if a person think about to commit such kind of offense. So it is punishable under Indian Penal Code. Second we have is preparation. सेकेंड स्टेज विच वी हैव इज प्रिपरेशन. प्रिपरेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बोला किसी को थेफ्ट कमिट करना है तो पहले वो क्या करेगा, पहले वो नाइफ परचेज करेगा. किसी को पॉइजन देना है तो फिर वो पॉइजन परचेज करेगा. डायरेक्टली ऐसे ही तो किसी को मार नहीं देगा, राइट. कोई भी एक्ट कमिट करने से पहले यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू मेक वन प्लान. कुछ नेसेसरी अरेंजमेंट होनी चाहिए ताकि अपन को जो एक्ट कमिट करना है वो कंप्लीट हो जाए, राइट. Next we have is as I mentioned earlier, her intention is not punishable, but often mere intention to commit an offense is also punishable under IPC. So same we have for preparation. There are some preparation which are often punishable under the Indian Penal Code, that is waging war against the government, preparation to commit dacoity, preparation of counterfeiting of coin. Counterfeiting of coin means नकली रुपए बनाना, जो नकली लाइक रुपीज़ वगैरह होते हैं. सो दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ काउंटरफिटिंग ऑफ कॉइन्स, possessing counterfeiting of coins. So this is all preparation. Only preparation is not punishable, right. अभी जैसे पर्सन ए है और पर्सन बी है, अभी आपको कैसे पता चलेगा कि पर्सन ए है उसने नाइफ परचेज किया है तो वो नाइफ मर्डर के लिए ही परचेज किया है या उसके घर के लिए परचेज किया है. सो इट विल नॉट वर्क आउट. तुम्हें नहीं पता चलेगा सामने वाला प्रिपरेशन लाइक एक ऑफेंस कमिट करने के लिए कर रहा है या नहीं कर रहा है. ओके, बट येस, एज आई मेंशन अर्लियर, देयर आर सम प्रिपरेशन विच इज ऑल्सो पनिशेबल अंडर इंडियन पिनल कोड. ओके, द थर्ड स्टेज विच वी हैव इज अटेम्प्ट. Attempt is also known as a preliminary offense, or we can also say the injured crime. इसका मतलब क्या होता है, फाइनल एक्ट कमिट करने से पहले द थर्ड स्टेज इज अटेम्प्ट. अभी फॉर एग्जांपल मैं मर्डर करने जा रही हूँ. सो आई एम द पर्सन ए एंड यू आर द पर्सन बी. मैंने अपनी गन आपके हेड के ऊपर पॉइंट आउट की, लाइक आप सामने वाले बिल्डिंग पे खड़े हैं एंड मैं ये वाले बिल्डिंग, अपन दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस है. सो मैंने इधर से गन आपके हेड पर पुट की, राइट. वो निशाना जो रहता है गन का उधर से मैंने किया. जैसे ही मैं ट्रिगर पुल करने गई आप आगे मूव हो गए, राइट. जैसे ही मैं ट्रिगर पुल करने गई आप आगे हो गए. सो इसकी वजह से क्या हुआ, मेरा जो गन का जो शॉट था वो आपको नहीं लगा और आप बच गए. सो दिस इज़ एन अटेम्प्ट. सो बेसिकली जो एक्ट हम करना चाहते हैं वो नहीं होता है तो उसको हम अटेम्प्ट बोलेंगे. जैसे कि मैंने मर्डर का एग्जांपल दिया. थेफ्ट में भी ऐसा हो सकता है कि लाइक पर्सन ए है, वो पर्सन बी के घर के अंदर थेफ्ट कमिट करने गया, बट ड्यू टू सम सर्कमटेंसेस और ड्यू टू रीजन थेफ्ट कमिट नहीं हुआ, उसको फिर से आना पड़ा, तो वी कैन से इट इज़ एन अटेम्प्ट. ओके, yes, the whole offense is punishable under IPC, but apart from this there are certain attempts which is also punishable under IPC. For example, theft हो गया, murder हो गया, culpable homicide हो गया, kidnapping हो गया, abduction हो गया. This is all is punishable under IPC. So the very last stage is act. As I mentioned earlier, this is the person A, this is the person B. मैंने अपनी गन ट्रिगर की और एकदम पर्सन बी के हेड पर लगी एंड ही इमीडिएटली डाइड. सो दिस इज एक्ट. अटेम्प्ट में क्या होता है, मेरा जो मोटिव है, मेरा जो इंटेंशन है सामने वाले पर्सन को मारना या फिर हार्म करना, वो कंप्लीट नहीं होता है. अटेम्प्ट में मेरा जो इंटेंशन है वो नहीं होता है कंप्लीट. वाइल इन द एक्ट मैं जो करना चाहती हूँ वो एक्ट कंप्लीट हो जाता है. ओके, under act we can take example is for example person is crossing a road and suddenly a group of person एक वैन में आते हैं और पर्सन ए को अबडक्ट कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं इनटू हिज कार. सो हियर वी कैन से दैट कि इधर उनका जो इंटेंशन था, सामने जो पर्सन क्रॉस कर रहा है रोड, उसको उठा लेने का, गाड़ी में ले जाने का, वो इधर कंप्लीट हो जाता है. जब अपन का एक्ट, जब अपन का इंटेंशन, जब अपन का मोटिव कंप्लीट हो जाता है उसको अपन बोलेंगे एक्ट. अगर अपन का कोई इंटेंशन अधूरा रह जाता है तो उसको अपन बोलेंगे अटेम्प्ट. सो या दिस इज़ द बेसिक स्टेजेस ऑफ क्राइम.
कंक्लूडिंग देर आर टोटल 4 स्टेजेस. फर्स्ट इज इंटेंशन. इंटेंशन मतलब कोई भी एक्ट करने से पहले तुम सोचते हो ओके मुझे ये पर्सन को मारना है, क्यों मारना है. दिस इज द बेसिक इंटेंशन. दैट इज अ बैड इंटेंशन. वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज एन एविल इंटेंशन. ओके. सेकेंड वी हैव इज प्रिपरेशन. कोई भी एक्ट करने से पहले तुम्हें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. ऐसे ही तुम जाके करके आ गए तो इट विल नॉट वर्क आउट, राइट. प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. थर्ड इज अटेम्प्ट. अटेम्प्ट इज नॉट एन फाइनल एक्ट बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्ट. ओके, जो अपन करना चाह रहे हैं वो कंप्लीट नहीं होता है, वो अधूरा रह जाता है. दैट इज एन अटेम्प्ट. फोर्थ वी हैव इज एक्ट. जो अपन का इंटेंशन है, जो अपन का मोटिव है सामने वाले पर्सन को मारना, वो कंप्लीट हो जाता है. दैट इज एन एक्ट. So yeah, these are the 4 stages of crime. Hope you understand well. That's all. Thank you.